So let's start our chapter number 2, that is your internet services. Internet services. In our previous class, we have studied about the internet, history of internet, terms related to the internet, and many more. Everyone, सर hello आवाज क्लियर students. नहीं आ रही है। सर Hello. कट रही है बीच बीच। सर आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है। It may be the internet connection is unstable. That's why you all are facing this problem. Hello. Hello, sir. Hello. हेलो। Hello, sir. Yes, sir. Hello. Hello. Okay. Yes, sir. Listen. Yes, sir. Listen. ठीक है? Internet services. ठीक है? तो your internet services. So, see what your book says. Internet services and mobile technology is your chapter name. Introduction. So you know the what internet is, what you have know, what to do. People really do on the internet. JavaScript data files and access all sorts of information. ठीक है? So these are all the services of the internet. These are all the services of the internet is known as what? Internet services. The service which is available on the internet is known as what? Internet services. Services like email, chatting, video conferencing, news group, blog, e-learning, e-reservation, e-group, e-commerce, like this. These are all the services of the internet. So keep it in mind. What service on the internet is known as what? Infant. सब उसी में स्टोर कर रहे हैं। In that, सर आवाज नहीं आ रही है, वीडियो भी रुक गया है। everyone, the service which is say yes or no any. आवाज नहीं आ रही है। तो कुछ नहीं आ रहा है। कौन सा चैप्टर है सर? Hello. 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 Yes, sir. Now voice is clear. Voice is clear to everyone, na? वीडियो क्लियर नहीं है सर, वीडियो क्लियर नहीं है। Network. Okay, let's start. प्लीज सभी म्यूट कर लो। हाँ, internet services. ठीक है, तो internet services, the service which is available on the internet is known as what? Internet services. ठीक है, like chat, video conferencing, e-learning, e-commerce,
e-commerce, e-governance, ठीक है, blog, news group. These are all the services of the internet. So now in this chapter we are going to study one by one all these internet services. First your internet service is coming information retrieval. First internet servicing is coming information retrieval, means getting all type of information. Getting all type of information from the internet is known as what? Information retrieval. ठीक है, suppose that you want to search any topic, you want to know about the computer, you want to know about the computer. For that you go to the you go on the internet and search about what? Computer. You search the topic computer, ठीक है, on the internet. So that is known as what? Information retrieval, means getting information over the internet. Getting information over the internet is known as what? Information retrieval. We can get all type of information. We can get all type of information according to our keywords. According to our keywords means our choice. Whatever we want to search over the internet, on the internet, then we can easily can search and get the information about our topic. So this is known as what? Information retrieval. ठीक है. See, after connecting your PC to internet, you are ready to retrieve information from net. But for this, you need an important software. Hello. Hello. Yes. हेलो स्टूडेंट. सर आप फ्रीज हो जा रहे हैं. नेटवर्क इशू है बाबू, नेटवर्क इशू. So information retrieval means getting any type of information over the internet is known as what? Information. सर ब्रॉडबैंड चल रहा है तब भी नेट का प्रॉब्लम होता है क्या? हाँ, ये वाईफाई चलता है तब भी प्रॉब्लम हो जाता है सर. क्या कह रहे हो? हेलो सर. हाँ रवि बोलो. सर ये वाईफाई चलता है तब भी प्रॉब्लम होता है बार बार बीच में. जब एक्सेस यूज होगा तो दिक्कत तो आएगी ना. जब आपका एक्सेस यूज होता है, चीजें बार बार ज्यादा तो आप यूज करोगे तो प्रॉब्लम्स आती हैं. ठीक है ना. तो here is one topic, exploring Yes, the net surfing. Net surfing, exploring the web is known as what? Net surfing. Net surfing is topic here. Net exploring the web. Exploring the web is known as net surfing. ठीक है, नेट सर्फिंग एक्सप्लोरिंग द वेब इज नोन एज नेट सर्फिंग. मींस इफ यू आर जस्ट गेटिंग एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, इफ यू आर गेटिंग योर इंफॉर्मेशन थ्रू द इंटरनेट, दैट इज नोन एज व्हाट? नेट सर्फिंग. ठीक है ना. मींस एक्सप्लोरिंग द वेब. वेब मींस वेब पेजेस. वेब मींस व्हाट? वेब पेजेस. ठीक है. एक्सप्लोरिंग द वेब इज नोन एज व्हाट? नेट सर्फिंग. मींस इफ यू आर जस्ट सर्चिंग एनीथिंग एंड गेटिंग इन द फॉर्म ऑफ वेब पेजेस, दैट इज नोन एज व्हाट? द नेट सर्फिंग. ठीक है. तो नेट सर्फिंग, जब भी आप इंटरनेट को क्या करते हो, यूज करते हो, उस प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है? नेट सर्फिंग कहा जाता है. क्या कहा जाता है? नेट सर्फिंग कहा जाता है. ठीक है. तो फर्स्ट आपका टॉपिक है यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिट्रीवल खत्म हुआ. ठीक है. तो to visit a site on the net, you need to supply the address of the site, or in other words the URL to the browser. ठीक है. कह रहा है किसी भी वेबसाइट को, अगर किसी भी वेबसाइट को, किसी वेब पेज को आपको क्या करना है? विजिट करना है, उस वेब पेज को देखना है, उस वेबसाइट को आपको जानना है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जानना है आपको. ठीक है. तो आप क्या करोगे? उसका जो URL होता है, जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, उसको आपको क्या करना होता है? वेब ब्राउजर को देना होता है, और वेब ब्राउजर उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें क्या करता है? डिस्प्ले करता है. ठीक है. And you will see your browser fetch the home page from the site address you have specified in the address bar of your browser. ठीक है. और उससे रिलेटेड जो भी आपका इंफॉर्मेशन होता है, जो वेब ब्राउजर होता है, वो फेच. यहाँ वर्ड आ रहा है आपका फेच, FETCH. एक वर्ड आ रहा है आपका FETCH, फेच. फेच मतलब क्या होता है? खींचना. ठीक है. उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो भी होता है वो खींच के लेके आता है. कौन? वेब ब्राउजर होता है. ठीक है. This way you can explore all the sites on the web. Exploring web is generally known as the net surfing. ठीक है. इस तरीके से आपको जो भी आपको इंफॉर्मेशन अगर आपको इंटरनेट से लेना है तो क्या कर सकते हो? ले सकते हो. ठीक है ना.
तो सम इंटरेस्टिंग साइट्स टू विजिट, कुछ यहाँ पे आपको कुछ इंटरेस्टिंग वेबसाइट्स दे रहा है जिस पर आप क्या कर सकते हो, विजिट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपका आ रहा है www.bbc, BBC, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BBC, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BBC, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BBC, ब्रिटिश बोर्ड कास्टिंग सिस्टम, कास्टिंग, हाँ ब्रिटिश बोर्ड कास्टिंग, ठीक है, ब्रिटिश बोर्ड कास्टिंग होता है, ठीक है। तो ये भी एक वेबसाइट है जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, विजिट कर सकते हो, कुछ भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको लेना है न्यूज से रिलेटेड। www.coacademic.com, ये भी आपका वेबसाइट है, एकेडमिक से रिलेटेड होता है। अगर आपको एकेडमिक से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना है तो इस को आप जा सकते हो यहाँ पे को एकेडमिक पे। thimble.mozilla.org, फैंटास्टिक ऑनलाइन एडिटर टीचर्स किड्स टू राइट द वेब, ठीक है। ये आपका एक ऐसा वेबसाइट है जिसको आप क्या कर सकते हो, वेब पेज की डिजाइनिंग आप सीख सकते हो यहाँ पे जाके। www.discovery.com, ठीक है, ये भी एक आपका वेबसाइट है, www.discovery.com, ठीक है। discovery.com पे आप जाके क्या कर सकते हो। सी क्या है? हाँ, सी से आपने क्या लिखा? ब्रिटिश बोर्ड, सी से ब्रिटिश और सीओ कंपनी है, ठीक है, company.uk, एजुकेशन लेवल, ठीक है। सीओ जो क्या एक्सटेंशन है, बीबीसी का फुल फॉर्म क्या लिखा है? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। discovery.com है, www.nationalgeography.com है, ठीक है। ये भी आपका एक वेबसाइट है जिस पर आप जाके क्या कर सकते हो, कुछ भी आपका वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड आपका इंफॉर्मेशन है उसके बारे में अगर आपको जानना है तो इस nationalgeography.com पे जाके आप क्या कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन वहां से आप ले सकते हो। तो इस तरीके से आप किसी भी वेबसाइट को, किसी वेब पेज को आपको लेना है तो आप क्या कर सकते हो, इंटरनेट के थ्रू आप इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। दैट्स व्हाई इट्स नेम इज इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, मींस वी कैन गेट एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, माइंड यू, वी कैन गेट एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू आवर कीवर्ड्स, रिलेटेड टू आवर कीवर्ड्स, जो भी हमारा कीवर्ड होगा, जो भी हम कीवर्ड से टाइप करेंगे उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारे सर ब्लॉग के लिए किस वेबसाइट को यूज करते हम लोग? हाँ सर ब्लॉग के लिए, ब्लॉग क्या चीज, bloggerspot.com है, किस- bloggerspot.com, bloggerspot.com के थ्रू आप क्या कर सकते हो, ब्लॉग को यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज कमिंग योर ईमेल, नेक्स्ट टॉपिक इज कमिंग व्हाट, ईमेल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, एंड वाइडली यूज सर्विस ऑफ द इंटरनेट, इट इज द मोस्ट वाइडली यूज सर्विस ऑफ द इंटरनेट, दैट इज नोन एज व्हाट, ईमेल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, electronic इलेक्ट्रॉनिक मेल, electronic mail, keep it in mind, electronic mail, ठीक है। It is the most useful, it is the most useful and widely used service of the internet, it is the most useful and widely used service of the internet, ठीक है। इंटरनेट पर सबसे ज्यादा यूज होने वाली सर्विस क्या आपकी है, ईमेल है, सबसे ज्यादा यूज होने वाली सर्विस क्या आपका, ईमेल है, ठीक है। फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग व्हाट, ईमेल्स, मैसेजेस, ठीक है। कोई भी मैसेज को अगर आप कहाँ पे सेंड कर रहे हो या फिर रिसीव कर रहे हो, इंटरनेट पे आप रिसीव करते हो या फिर आप उसको सेंड करते हो, तो उसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट आती है, ईमेल की रिक्वायरमेंट आती है। किसकी रिक्वायरमेंट आती है, ईमेल, दैट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट, इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट communication medium, it is one of the fastest communication medium to transfer message from one location to the another location, ठीक है। एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे आप मैसेज क्या करना चाहते हो, ट्रांसफर करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे फास्टेस्ट मीडियम क्या होता है आपका, ईमेल होता है। सबसे फास्टेस्ट मीडियम क्या होता है आपका, ईमेल, ठीक है। कोई भी मैसेज आपको सेंड करना है तो क्विकली, इंस्टेंटली आप क्या करते हो, कोई भी मैसेज आप ईमेल के थ्रू क्या कर देते हो, आप सेंड कर देते हो। अरे बात समझ के सबको, ठीक है। Let's see, the most widely used tool on the internet is electronic mail or email. Email is used to send written message between individual or groups of individual, ठीक है। Groups of individual or individual, आप किसी single particular person को भी आप भेज सकते हो या फिर ग्रुप में भी आप क्या कर सकते हो, मेल को आप सेंड कर सकते हो, ठीक है। See, of individually other geographical separated by large distances, ठीक है, and there is no any distance barrier, there is no any distance barrier, ठीक है। We can just send message from any location, from a given लोकेशन, एक लोकेशन से आप क्या कर सकते हो, किसी भी दूसरे किसी लोकेशन पर आप क्या कर सकते हो, मैसेज को आप सेंड कर सकते हो। ईमेल मैसेजेस आर जनरली सेंड फ्रॉम एंड रिसीव्ड बाय ईमेल सर्वर, कंप्यूटर डेटा डेडिकेटेड टू प्रोसेसिंग ए डायरेक्टेड ईमेल, ठीक है। आप क्या करते हो, आप जो भी सेंडर मेल को क्या करता है, सेंड करता है, ठीक है। सेंडर क्या करता है, सेंड करता है, और रिसीवर क्या करता है, आपको रिसीव करता है। सेंडर मेल को क्या करता है, सेंड करता है, और रिसीवर उसको क्या करता है, रिसीव करता है। लेकिन बीच में आपका क्या होता है,
सर्वर होता है, बीच में आपका क्या होता है, सर्वर। ठीक है, वो सर्वर कौन कौन से आपके हैं, बताया भी गया आपको, SMTP है और क्या आपका POP, SMTP है और क्या आपका POP। सेंडर मैसेज क्या करता है, सेंड करता है, ठीक है, फिर रिसीवर क्या करता है, रिसीव करता है, लेकिन बीच में क्या हो जाता है, सर्वर हो जाता है। तो SMTP और POP ये दो सर्वर वर्क करते हैं आपके ईमेल को सेंड करने में या फिर उसको क्या करने में, रिसीव करने के लिए। ठीक है, once the server has received a message, it direct to the specific computer that the mail is addressed to send email. The process is reversed, a very convenient and inexpensive way to transmit message. It is one of the cheapest, or you can say the inexpensive way. It is one of the cheapest, or you can say the inexpensive way to transmit message from one location to the another location. एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे अगर आपको मैसेज करना है तो उसके लिए सबसे चीपेस्ट, जैसे मैं पहले भी आपको बताया था, सबसे चीपेस्ट सस्ता आपका मीडियम होता है ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, ईमेल हैज ड्रामेटिकली इफेक्टेड साइंटिफिक, पर्सनल एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, ईमेल्स आपके जो भी आपके साइंटिस्ट होते हैं, साइंटिफिक पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है, पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है, और फॉर द बिजनेस पर्पस भी इसको क्या किया जाता है यूज किया जाता है। ठीक है, इन आवर ईमेल वी कैन सेंड टेक्स्ट एज वेल एज ऑडियो, वीडियो, पिक्चर। ठीक है, वट एवर वी वांट टू सेंड वी कैन सेंड अप टू 25 MB, अप टू 25 MB, 25 MB तक आप क्या कर सकते हो, अपने इंफॉर्मेशन को ईमेल के थ्रू आप क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। अरे बात समझ में, अप टू 25 MB, अप टू 25 MB वी कैन सेंड। ठीक है, सेंड our data, or you can say that information, ठीक है, from one location to the another location, ठीक है, in the form of text, audio, video, picture, or whatever is your in data, ठीक है, whatever is your data you can send up to 25 MB, up to 25 MB, ठीक है, 25 MB तक आप क्या कर सकते हो, डाटा को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ईमेल के थ्रू आप क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। ठीक है, जनरली आपका वो उसमें टेक्स्ट आपका सेंड होता है। ठीक है, अगर आपके पास कोई फाइल फोल्डर है, ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, अटैचमेंट, क्या यूज किया जाता है, अटैचमेंट। ठीक है, अटैचमेंट के थ्रू मैं आगे बताऊंगा कैसे उसमें अटैच होता है, बस अभी आप यहाँ जान लो। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे टेक्स्ट के लिए आप यूज करते हो ईमेल। ठीक है, बॉडी जो होता है उसमें टेक्स्ट को डिफाइन किया जाता है। अगर आपके पास कोई और अदर फाइल्स होते हैं, जैसे आपका ऑडियो हो गया, पिक्चर हो गया, वीडियो हो गया, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, ऑप्शन अटैचमेंट का ऑप्शन होता है। उस अटैचमेंट के ऑप्शन से आप क्या कर सकते हो, मोर देन 25 MB आप फाइल्स को क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। अरे बात समझ सबको, ठीक है। तो ईमेल दैट इज इट इज द सर्विस मोस्ट वाइडली यूज्ड सर्विस ऑफ द इंटरनेट दैट इज यूज्ड टू रिसीव और सेंड मैसेज फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। इट इज वन ऑफ द इट इज इनएक्सपेंसिव वे फॉर it is inexpensive way of communication, inexpensive way of communication। ठीक है, there is no any distance barrier, means we can send message from one location to any other location, ठीक है, throughout the world, ठीक है। तो this is the our what email, हाँ, each and everything we can just transfer, ठीक है। नेक्स्ट, ईमेल एड्रेस, ईमेल अकाउंट एंड एड्रेस, ठीक है। टू सेंड एंड रिसीव वी नीड एन ईमेल अकाउंट। टू सेंड और रिसीव एन ईमेल वी नीड एन ईमेल अकाउंट, ठीक है। अगर आपको क्या करना है, मैसेज सेंड करना है या फिर आपको रिसीव करना है, तो व्हाट वी नीड एन ईमेल अकाउंट, ठीक है। अगर आपको क्या करना है, ईमेल सेंड करना है या फिर रिसीव करना है, तो उसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट आती है, ईमेल अकाउंट की रिक्वायरमेंट आती है। दैट इज नोन एज द ईमेल एड्रेस आल्सो, दैट इज नोन एज द ईमेल एड्रेस आल्सो, ठीक है। सो मेनी वेबसाइट्स ऑफर ईमेल सर्विसेज, बहुत सारे आपके वेबसाइट्स होते हैं जो क्या करते हैं, ईमेल सर्विस ऑफर करते हैं। जैसे आप जीमेल नाम सुना होगा आपने, जीमेल नाम सुना है ना, जीमेल है, याहू है, रेडिफ है, कुछ नहीं भी सुना होगा तो आप जान लो, जीमेल है, याहू है, रेडिफ है, सिफी है, सुने हैं सर, सिफी, हॉटमेल, ठीक है। ये सारे आपके जो ये सारे वेबसाइट्स होंगे जो आपको ईमेल की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, ईमेल की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा यूज होने वाला आपका जीमेल है, सबसे ज्यादा आपका यूज होने वाला क्या है, आपका जीमेल है, ठीक है। जीमेल आपको जो क्या करता है, ईमेल की सर्विस ऑफर करता है और सबसे ज्यादा आपका यूज होने वाला है, ठीक है। बाकी आपका याहू भी है, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा आप जानना चाहो तो याहू पे भी है, रेडरिफ पे भी आता है,
सिफी भी आता है और क्या आता है आपका हॉटमेल भी आता है। ठीक है, ये 5 है, पांचों आप लोग जान लो। लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाली कौन सा आपका सर्विस है? सबसे ज्यादा किस पे ईमेल सर्विस यूज किया जाता है? जीमेल के वेबसाइट पे। किस पे यूज किया जाता है? जीमेल के वेबसाइट पे। ठीक है, ठीक है। तो अभी बात करते हैं हम ईमेल अकाउंट की। ठीक है, तो मैंने बताया ना आपको ईमेल अकाउंट किस लिए यूज किया जाता है? टू सेंड और रिसीव वी नीड अ ईमेल एड्रेस। टू सेंड और रिसीव वी नीड एन ईमेल एड्रेस। ठीक है, एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो आपका आ रहा है एग्जांपल में, यहाँ क्लियरली आपको दिखाई देगा, देवस्थली बलिया @what gmail.com @gmail.com। ये एक आपका एग्जांपल मैंने दिया ईमेल एड्रेस का। ठीक है, स्कूल का ही ईमेल एड्रेस है, देवस्थली नहीं, प्रिंसिपल डीबीपी बलिया है। चलो इसी पे देख लो आप, देवस्थली बलिया @gmail.com, देवस्थली बलिया @gmail.com। ठीक है, तो ये आपके इसमें 3 पार्ट होते हैं। इसमें क्या होता है? आपके 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, ये आपका जो है इसको आपका यूजर नेम कहा जाता है। ये क्या होता है आपका? यूजर नेम। और ये यूनिक होगा। ये क्या होगा आपका? यूनिक। सबके लिए क्या होगा? अलग होगा। सबके लिए क्या होगा आपका? अलग होगा। ठीक है, ये यूनिक होता है। यूजर नेम जो होता है कैसे क्या होता है आपका? यूनिक होता है। ठीक है, अगर आपकी ईमेल आईडी अगर आप बनाते हो तो जो भी आपका यूजर नेम होगा क्या होगा? यूनिक होगा। ठीक है, एक जैसा नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने अपना ईमेल आईडी बनाया है, ठीक है, तो मेरा जो एक बार मेरे नाम से जो क्रिएट हो गया वो कोई दूसरा आप नहीं बना पाएगा। दूसरा बनाएगा तो उसमें कुछ ना कुछ वो क्या करेगा? चेंज जरूर करेगा, चाहे वो नंबर का उसमें चेंज आए, चाहे लेटर का चेंज आए, ठीक है, चाहे किसी स्पेशल कैरेक्टर का चेंज आए। ठीक है, तो उसमें आपका ये आएगा। ठीक है, यूजर नेम। ठीक है, क्योंकि यूजर नेम क्या होता है? डिफरेंट होता है। ठीक है, सबके लिए क्या होगा? वो अलग अलग होगा। ठीक है, ये आपका आता है सेकंड। इसमें जो आता है इसको सेपरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेपरेटर। इसको क्या कहा जाता है? सेपरेटर। ये जो सिंबल है इसको सेपरेटर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हो आप? इसको सेपरेटर कहते हो। ठीक है, और लास्ट में आपको पता है क्या होता है? ये डोमेन नेम। इसको क्या कहते हो आप? डोमेन नेम। पता ही आपको, डोमेन नेम बताया गया आपको। ठीक है, .com कमर्शियल है। ठीक है, .com मतलब क्या? .com मीन्स व्हाट? डोमेन नेम। जो .com उसका मतलब क्या है? कमर्शियल है। डोमेन नेम मतलब उसका क्या है? आपका कमर्शियल है। ठीक है ना, तो आपको समझ में आना चाहिए। ये आपका ईमेल एड्रेस होता है। ईमेल एड्रेस दैट इज यूज्ड टू सेंड और रिसीव ईमेल्स। ठीक है, ईमेल एड्रेस इज यूज्ड टू सेंड और रिसीव। So audio and video is sir. आप मेरे साथ यहाँ तो सारी चीजें क्लियर है, आप देख लो अपना इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, देवस्थली बलिया @gmail.com। ठीक है, तो ये इसका पूरा ईमेल स्ट्रक्चर होता है आपका। ठीक है, जो इस साइड जो होता है आपको, जो लेफ्ट साइड होता है उसको यूजर नेम कहते हो। ये आपका यूनिक होगा। बीच में आपका सेपरेटर होता है और लास्ट में आपका क्या? हेलो स्टूडेंट। email account and address both are same. Email account and address both are same. Email account and address both are same. Clear to everyone? सर जैसे हम कहीं पे मतलब सर्च इंजन से कुछ सर्च करते हैं, हाँ हाँ सर जो इंफॉर्मेशन आता है तो मतलब सर्वर हर इंफॉर्मेशन का अलग अलग होता है ना सर्वर? नहीं, हर इंफॉर्मेशन के लिए नहीं होगा। जैसे आप टेक्स्ट के लिए ले रहे हो उसके लिए अलग होता है, फाइल ट्रांसफर कर रहे हो उसके लिए अलग होता है, ईमेल के लिए अलग होता है। ठीक है, इस तरीके से हर सर्च के लिए अलग नहीं होगा। आप नहीं दिख रहे हैं। बाबू ये नेटवर्क ही नहीं है। आप दिख रहे हैं। आप दिख रहे हैं? हाँ हाँ। ठीक है, तो हर अब जो हमारा इंफॉर्मेशन है ना उसके अकॉर्डिंग हमारा सर्वर चेंज होता है। अगर टेक्स्ट के लिए होगा तो अलग होगा। ठीक है, फाइल्स के लिए होगा तो अलग सर्वर होगा। अगर आप ईमेल सेंड कर रहे हो चाहे रिसीव कर रहे हो उसके लिए अलग है। कम्युनिकेशन के लिए अलग यूज होता है, क्लास चलवाइए, अलग होता है। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम किसी को? सर अभी जो प्रॉब्लम आपने बताई उसे वापस बताइए हमें। ना वो पर्सनल एक बच्चे का क्वेश्चन था कि सर सर्वर
हर एक के लिए अलग अलग होता है, तो हाँ सर, बिल्कुल सर अलग वही होता है। क्वेश्चन का आंसर हम लोग को भी जानना है, अच्छा। लेकिन हम लोग सुने नहीं कोई बात नहीं, फिर से क्योंकि हम सुन लोग लो को आप। सुनाई नहीं दिया। हाँ ठीक है, जो सर्वर होता है ना, हर इंफॉर्मेशन के लिए अलग होता है, ठीक है। जैसे आप टेक्स्ट सर्च करते हो, ठीक है, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो जो भी सर्च करते हो तो उसके लिए सर्वर अलग है। फाइल अगर ट्रांसफर हो रहा है तो उसके लिए अलग है। कम्युनिकेशन अगर हो रहा है तो उसके लिए सर्वर अलग होता है, ठीक है। ईमेल सेंड करते हो तो उसके लिए सर्वर अलग होता है। न्यूज ग्रुप अगर आप क्रिएट करा रहे हो तो उसके लिए सर्वर अलग होता है, ठीक है। तो ये सबके लिए अलग अलग सर्वर बनाए गए हैं, जैसा यूज होता है उसके अकॉर्डिंग सर्वर आपका वर्क करता है, और जो भी क्लाइंट होता है तो उसको सर्व करता है जो सर्वर होता है रिक्वेस्ट पे, जो वेब ब्राउजर के हेल्प से। सर आईआरसी सर्वर क्या होता है? आईआरसी सर्वर ये इंटरनेट रिले होता है वो, ठीक है। इंटरनेट कम्युनिकेशन में उसको यूज किया जाता है आईआरसी के लिए। अच्छा। और कुछ? सर जब आईडी बनाते हैं तो जीमेल क्यों मांगता है? वो जीमेल सर्विस प्रोवाइड करता है ना, मैंने बताया ना कि ईमेल अकाउंट के लिए, ईमेल एड्रेस के लिए बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जो क्या करते हैं, ईमेल की सर्विस को प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो जैसे जीमेल है, याहू है, रेडिफ है, सिफी है, हॉटमेल है, इन सब में से किसी एक को आप चूज कर सकते हो। तो तो सबसे ज्यादा यूज होने वाली कौन सा आपका अकाउंट है, कौन सा वेबसाइट है? जीमेल है। तो हम मैक्सिमम जो होते हैं वेबसाइट आपके जीमेल पे ही बनते हैं, इसलिए जीमेल पे ही उसको बनाया जाता है, ठीक है। आप खुद भी बना सकते हो, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम बनाने जा रहे हो तो आपको आएगा साइन इन। साइन इन करके आप क्या कर सकते हो, साइन इन, ऊपर चला जाए, साइन इन, सर आप स्टैचू हो गए हैं। साइन इन करके आप क्या करते हो, फर्स्ट टाइम आप इन किसी भी नहीं वेबसाइट दिख पे रहे जाके हैं आप अपना क्या कर सकते हो, ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, चाहे जीमेल पे, याहू पे, सर। रेडिफ, सिफी, हॉटमेल पे, किसी पे भी जाके आप क्या कर सकते हो, अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सर सकते आप हो, दिख ठीक है। नहीं रहे हैं। हेलो जी, कितना दिखूं, सामने तो खड़ा हूँ। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही अब बाबू, दिख रहे ठीक है। हैं। आप लोग थोड़ा और पढ़ना, ठीक है। मैं तो टारगेट था कुछ ज्यादा कवर करता, लेकिन हो नहीं पाया इंटरनेट, ड्यू टू बैड इंटरनेट कनेक्शन। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस टू ऑल। सर शाम को क्लास चलवाइए। शाम को स्टार्ट कीजिए कल से सर। चलो लेट अस यस सी। सर। ओके, बाय बाय।